بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں جماعت اسلامی سڑکوں پر نکل آئی۔ مظاہرین کی پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی، رہنماؤں نے جرائم کی روک تھام میں ناکامی پر متعلقہ تھانے کے باہر احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف گلشن رفیق کے رہائشی اور جماعت اسلامی سراپا احتجاج، مظاہرین کی پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی۔ احتجاجی مظاہرے کی قیادت جماعت اسلامی کے رہنما میاں اعجاز حسین نے کی۔ بولے لوگوں کی جان و مال غیر محفوظ، شہر میں دن دہاڑے وارداتیں ہو رہی ہیں، پولیس جرائم پیشہ عناصر کو روکنے میں ناکام، پروٹوکول کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ میں اس موقع پہ یہ ضرور کہوں گا کہ جب پولیس اپنے فرائض ادا نہ کرے اور دیگر جو ذمہ داریاں ہیں کہ منسٹر، ان کے مشیروں اور ان کی فیملی کو صرف پروٹوکول دینے میں مصروف ہو، اور یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے وزیر داخلہ صاحب یہاں پہ ہوئے تھے، اور ان کے علاقے کے اندر یہ حالت ہے کہ روزانہ 3-3 4-4 سرعام یعنی دن کے اجالے کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ جماعت اسلامی کے کارکنان سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد احتجاجی مظاہرے میں شریک۔ رانا طاہا خان کا کہنا تھا کہ گلشن رفیق میں روزانہ کی بنیاد پر وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، علاقے میں خوف و ہراس کی فضا ہے، جرائم پر قابو نہ پایا گیا تو متعلقہ تھانے کے باہر احتجاج کریں گے۔ جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، یہاں پہ نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں، نہ دن کو محفوظ ہیں، نہ رات کو محفوظ ہیں، تو ہمیں تو یہاں پہ جینا ہمارا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آئے دن ہمارے نقصان ہو جاتا ہے اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی جاتی ہے، آفیسر تشریف لاتے ہیں، آ کے موقع دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ مظاہرین کا کہنا تھا قیام امن کی ضامن پولیس نااہلی اور مجرمانہ غفلت کے باعث بے بسی کی تصویر بنی دکھائی دے رہی ہے۔ کیمرہ مین عثمان تاج کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41، فیصل آباد۔ مہنگائی کے مارے عوام کو حکومت کا ایک اور جھٹکا، بجلی ₹1.46 فی یونٹ مزید مہنگی، اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رواں ماہ بجلی کے بلوں پر ہوگا۔ عوام نے قیمتوں میں ایک بار پھر ہونے والے اضافے کو ظلم قرار دے دیا۔ حکومت نے عوام پر پھر بجلی گرا دی، بجلی ₹1.46 فی یونٹ مہنگی، اضافہ ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رواں ماہ بجلی کے بلوں پر ہوگا۔ فیصل آباد کے شہریوں نے قیمتوں میں ایک بار پھر ہونے والے اضافے کو ظلم قرار دے دیا۔ مہنگائی کی چکی میں پھنسے صارفین مشکل میں پھنس گئے، جہاں کے عوام کا بجلی کی قیمتوں میں اضافے پر سخت رد عمل۔ بولے حکومت غریب کو ختم کر کے ہی چھوڑے گی، لوگوں نے بجلی کی قیمت میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ کے شہری بھی بجلی مہنگی کرنے پر پھٹ پڑے، کہتے ہیں حکومت ہوش کے ناخن لے، مہنگائی نے مت مار دی، 2 وقت کی روٹی کھانے کے لالے پڑ گئے، بھاری بل کیسے ادا کریں۔ پاکستان میں لوگوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے مہنگائی نے، اوپر سے آئے دن بجلی کبھی ₹1.5 مہنگی، کبھی ₹3 مہنگی، اور اوپر سے اتنے ٹیکس جو ہمیں پتہ ہی نہیں آج تک کتنے ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ٹیکسوں کی وجہ سے مہنگائی میں اور اضافہ ہو رہا ہے کہ خدا را یہ ٹیکسوں کی بھرمار ختم کی جائے۔ مہنگائی تو جی بالکل ایسے ہی ہے کہ بھی پتہ چلتا ہے، صبح اٹھتے ہیں تو یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا جی، آج پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ جو ہے وہ بجلی ₹1.40 مزید مہنگی کر دی ہے۔ کیا کریں گے غریب عوام؟ ہماری تو جو ملازم طبقہ ہے وہ تو بالکل ہی بیچارہ پس گیا ہے۔ مہنگائی کی مجموعی شرح 26.32% کی سطح پر پہنچ گئی۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 0.96% اضافہ۔ حالیہ ہفتے 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 14 میں استحکام رہا۔ فیصل آباد میں چینی کی قیمت ₹180 کلو رہی۔ ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 26.32% کی سطح پر پہنچ گئی۔ حالیہ ہفتے 32 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی اور 14 میں استحکام رہا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹماٹر ₹15، دال مسور ₹32، دال مونگ ₹9.73، چینی ₹11.48 فی کلو مہنگی ہوئی۔ فیصل آباد میں چینی کی قیمت ₹180 کلو رہی، لہسن ₹20، دال مونگ ₹9.73، پیاز ₹3 اور گڑ ₹8 کلو مہنگا ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق LPG کا سلنڈر ₹153.06 مہنگا ہوا۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹14.52 اور ڈیزل کی قیمت میں ₹18.50 کا اضافہ ہوا۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا ₹6 مہنگا ہوا، جبکہ تازہ دودھ، آلو، انڈے، دہی اور کیلے بھی مہنگے ہوئے۔ بجلی چوری روکنے اور انتظامی امور میں بہتری کی امید، وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر فیسکو میں 200 افسران کے تقرر و تبادلے، افسران کو سوموار تک اپنے عہدوں کا چارج سنبھالنے کی ہدایت۔ وزارت پاور ڈویژن کی ہدایت پر فیسکو کمپنی کی تاریخ میں پہلی بار بڑی اخاڑ بچاڑ، سکیل 17 سے 19 تک 200 سے زائد افسران کے تبادلے کر دیے گئے۔ ایسی MND فیصل شفیع رانا ایسی فرسٹ سرکل تعینات، پروجیکٹ ڈائریکٹر کنسٹرکشن وقاص احمد بیگ ایسی سیکنڈ سرکل تعینات، چیف انجینئر P&D فیصل رضا مارت کو ڈائریکٹر CS لگا دیا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر سیفٹی سید رضا کو ایکسین MNT سیکنڈ سرکل تعینات کر دیا گیا۔ ایکسین غلام محمد آباد ڈویژن اسد علی شاہ کو TO فرسٹ سرکل لگا دیا گیا۔ ایکسین سمندری طاہر مقصود کو
एक्सीएन जुमरा का चार्ज दे दिया गया। डिप्टी कमर्शियल मैनेजर फर्स्ट सर्कल अब्दुल हफीज नदीम, डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एक्सीएन अब्दुल्लापुर वकास रशीद को एक्सीएन सिविल लैंड डिवीजन तैनात कर दिया गया। एक्सीएन सिविल वर्क शकीर हैदर लक सिविल वर्क्स 2 तैनात। एक्सीएन सिविल लाइन डिवीजन अवैस रशीद एक्सीएन अब्दुल्लापुर डिवीजन तैनात। डायरेक्टर कमर्शियल इकबाल खान डायरेक्टर क्रेडिट मैनेजमेंट यूनिट तैनात। एक्सीएन तांदियावाला मोहम्मद अहमद को डिप्टी डायरेक्टर CS लगा दिया गया। एक्सीएन पीपल्स कॉलोनी फहीम शाह को एक्सीएन चन्योट तैनात कर दिया गया। PA सेकंड सर्कल मोहम्मद एहसानुल हक को एक्सीएन तांदियावाला का चार्ज दे दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन रिजवान मजहर डिप्टी कमर्शियल मैनेजर फर्स्ट सर्कल तैनात। एक्सीएन जड़ावाला डिवीजन गुलाम नबी TO सेकंड सर्कल तैनात। एक्सीएन लालिया गुलाम मुर्तजा अब्बासी एक्सीएन फर्स्ट सर्कल सरगोदा तैनात। एक्सीएन P&I मोहम्मद ज़ुबैर को डिप्टी डायरेक्टर TNG लगा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग मोहम्मद सलीम डिप्टी डायरेक्टर MIT&G तैनात। डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल 2 मोहम्मद बख्श डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल 1 तैनात। एक्सीएन MNT सेकंड सर्कल अमार इम्तियाज एक्सीएन MNT फर्स्ट सर्कल तैनात। डिप्टी डायरेक्टर MM सेंट्रल वेयर हाउस मोहम्मद रफीक को डिप्टी डायरेक्टर प्रोक्योरमेंट का चार्ज दे दिया गया। फेस्को ने तमाम अफसरान को अपने ओहदों का चार्ज संभाल कर फराइज की अंजामदही की हदायत जारी कर दी हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। गैस चोरी के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू। GM फैसलाबाद डिवीजन राशिद इनायत कहते हैं जहां भी गैस चोरी हुई कार्रवाई होगी। गैस का गैर कानूनी इस्तेमाल भी रोका जाएगा। 2 माह में गैस चोरी के 28 केसेस पकड़े गए। गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। SNGPL के जनरल मैनेजर राशिद इनायत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ इंजीनियर ऑपरेशन तस्कीनुल इस्लाम, शोबा मॉनिटरिंग के हेड नदीम वट्टू, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राशिद हमीद और दीगर अफसरान मौजूद थे। GM राशिद इनायत ने कहा कि गैस चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां की जा रही हैं। गैस चोरी, कंप्रेसर्स और गैर कानूनी इस्तेमाल पकड़ने के लिए 26 टीमें तश्कील दी गई हैं, जिन्होंने 28 केसेस पकड़े हैं। गैस थेफ्ट के हवाले से एक कैंपेन शुरू की है, जिसमें जहां भी गैस चोरी होगी हमारी टीमें जो है हमने तश्कील दे दी हैं, जो कि छापे मारेंगी और जो गैर कानूनी कनेक्शन है वो हम काटेंगे। इसी तरह जो इलीगल यूज़ है कमर्शियल में या इंडस्ट्री में, उसके ऊपर भी हम सख्त कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था कि गैस के नए कनेक्शनों पर पाबंदी आयद है। गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए कंप्रेसर का इस्तेमाल जुर्म है। एक कंप्रेसर चलने से 50 करोड़ को गैस की सप्लाई मुतासिर होती है। कंप्रेसर चलाने वाले किसी भी सूरत रियायत के मुस्तहिक नहीं। इसमें और चीज़ आ रही है कि लोग कंप्रेसर बहुत यूज़ कर रहे हैं, जिससे वो हाई प्रेशर के ऊपर गैस जो है ना वो घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है ना वो लो प्रेशर हो जाता है और उनके अपने घर में भी कोई जो है ना वो धमाका वगैरह हो सकता है, क्योंकि जिस प्रेशर पे वो गैस होती है। तो इसलिए सबसे यही है कि वो गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल बंद करें, ताकि लोगों को प्रॉपर जो है ना वो गैस मुहैया की जा सके। हुक्काम ने बताया कि 7 सार्फिन के खिलाफ गैस चोरी के मुकदमात दर्ज कराए गए हैं। आने वाले दिनों में मुहिम में मजीद तेजी लाई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब के अस्पतालों की अपग्रेडेशन का मामला। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। एलाइड अस्पताल फैसलाबाद की अपग्रेडेशन की डेडलाइन मुकर्रर। कहते हैं 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन मुकम्मल की जाएगी। मंसूबे के मुताबिक सर्जिकल, मेडिकल वार्ड, आउटडोर और दीगर ब्लॉक अपग्रेड होंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन के हवाले से इजलास। वज़ीर आला ने एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद की अपग्रेडेशन की तकमील के लिए डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला का अपग्रेडेशन में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। 31 जनवरी तक अपग्रेडेशन मुकम्मल की जाएगी। सर्जिकल, मेडिकल वार्ड, आउटडोर और दीगर ब्लॉक अपग्रेड होंगे। कमिश्नर की एलाइड हॉस्पिटल की अपग्रेडेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम हॉस्पिटल को एक ही पैटर्न पर अपग्रेडेशन का हुक्म दे दिया। फैसलाबाद में 45% बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अगस्त की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ कर दिया। फैसलाबाद में डेंगू के वार, मजीद 4 अफराद शिकार। मुतासरा मरीजों की तादाद 134 हो गई। फैसलाबाद में 45% बच्चे पोलियो वैक्सीन से महरूम। बुनियादी और दही मराकज सेहत और तहसील हॉस्पिटल में वैक्सीन नहीं पिलाई जाती। महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने अगस्त की रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ कर दिया। CEO हेल्थ डॉक्टर असफंदियार का तमाम सेंटर्स पर पोलियो वैक्सीन पिलाने का दावा। बोले पोलियो वैक्सीन पिला रहे। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के बाद जायजा लिया जाएगा कि किस जगह कोताही हुई। फैसलाबाद में डेंगू मच्छर के वार तेज। मजीद 4 नए केसेस रिपोर्ट। डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 134 हो गई। मदीना टाउन, जिना टाउन और इकबाल टाउन में सबसे
सबसे ज्यादा 33 मरीज रिपोर्ट हुए। लालपुर टाउन 14, सदर फैसलाबाद 11, झुमरा 4 और जड़ावाला से 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। महकमा सेहत ने शहरियों से डेंगू SOPs पर अमल दरामद करने की अपील की। जंग में भी डेंगू के फैलाव का खतरा बढ़ने लगा। 34 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद, 1 मरीज रिपोर्ट। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रायपुर शहजाद भट्टी की जेर सदारत इजलास एंटी डेंगू टीमों की कारकर्दगी पर इजहार तशवीश। ब्रीफिंग में बताया गया 123 मुश्तबा अफराद सामने आए, 59,000 कार्रवाइयाँ की गई। रायपुर शहजाद भट्टी ने कहा 34 जगहों से लार्वा मिला, मगर सिर्फ 4 को नोटिस जारी हुआ, जो कि अफसोसनाक है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डेंगू के मामले में छूट देने वालों से वजाहत तलब करें। चिलियोट में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का एडमिन ऑफिसर नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल, रिकॉर्ड बरकरार न रखने पर फार्मेसी इंचार्ज और फार्मासिस्ट को भी शोकोज नोटिस जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने हॉस्पिटल के दौरे पर एक्शन लिया। डिप्टी कमिश्नर हॉस्पिटल की इमरजेंसी, गायनी, जनरल, ट्रॉमा सेंटर, डायलिसिस वार्ड समेत ऑपरेशन थिएटर और दीगर वार्ड्स में गए। मरीजों की अयादत की। CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल तारिक, MS डॉक्टर अहमद खान और दीगर इंतजामी अमूर के अफसरान भी मौजूद थे। महकमा ऑडिट का डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज फैसलाबाद का ऑडिट का फैसला। महकमा सेहत महकमा ऑडिट को साल 2023-24 के हवाले से फंड्स के अखराजात की तफसीलात फराहम करने से गुरेजा। रीजनल डायरेक्टर ऑडिट CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद को मरासला तमाम दरकार रिकॉर्ड महकमा ऑडिट को इरसाल करने के अहकाम जारी कर दिए। दरामदी पाबंदियां खत्म होने का मामला सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक महदूद। LCs खुलने का सिलसिला मामूल पर न आया। अद्वियात के खाम माल की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई। फैक्ट्रियों में पैदावार कम, मार्केट में अद्वियात नायाब होने लगी। मुल्की मुआशी अदम इस्तेहकाम, दरामद कुनंदगान की मुश्किलात में इजाफा। दरामदी पाबंदी खत्म होने का मामला सिर्फ अहकामात तक महदूद हो गया। LCs खुलने का सिलसिला मामूल पर न आया। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात के खाम माल की दरामद मुश्किल होने से अद्वियात की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई। अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को आगाह कर दिया। मार्केट में अद्वियात की किल्लत का मामला शिद्दत इख्तियार करने लगा। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर मियां तनवीर अहमद कहते हैं बर वक्त LCs न खुलने से मामला खराब हो रहे हैं। यही सूरत रही तो जिंदगी बचाने वाली अद्वियात मार्केट से नापैद हो जाएंगी। खाम माल की किल्लत से मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल हो गई है, जिसके असरात आना शुरू हो गए हैं। अद्वियात की इंपोर्ट के ऊपर जिस तरह पहले लोगों को मुश्किलात पेश आ रही थी, अभी भी सूरत हाल वैसे की वैसे ही है। और जितनी अद्वियात पहले शॉर्ट थी वो अभी तक शॉर्ट है, बल्कि उनकी जो लिस्ट है उसमें दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और उनकी तादाद पहले वो जो इंजेक्शन थे जो फिनिश फॉर्म में आते थे वो शॉर्ट थे, लेकिन अब जो टैबलेट जिनके रॉ मटेरियल शॉर्ट हो रहे हैं उनकी जो शॉर्टेज है, उनकी जो लिस्ट है शॉर्ट आइटम्स की वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दरामद कुनिंदगान ने हुकूमत से LCs बर वक्त खोलने और सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग में मरीजों की मुश्किलात कम न हुई। नई मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार। अस्पताल में बेड्स की कमी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया। जगह कम, मरीज ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की मेडिकल इमरजेंसी में मरीजों की मुश्किलात कम न हुई। नई बनने वाली मेडिकल इमरजेंसी का मंसूबा सुस्त रवि का शिकार होने से मरीज रुल गए। पुरानी मेडिकल इमरजेंसी में गुंजाइश से जायद मरीज होने की वजह से मुश्किलात हैं। 57 बेड की इमरजेंसी में 100 से जायद मरीज दाखिल हैं। मेडिकल इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, क्योंकि पेशेंट इतने ज़्यादा हैं। 50 के करीब हमारे इसमें मेडिकल में बेड हैं, जबकि मरीज़ 200-300 के करीब आ जाते हैं, तो वो उनको एडमिट करना पड़ता है। तो पेशेंट जो है वो स्ट्रेचर पे, बेंचों पे वो बैठते हैं। तो नई इमरजेंसी का जो मंसूबा था वो 3 साल से सुस्त रवि का शिकार है। मरीजों के लवाहिकीन जगह ना होने पर फट पड़े। बोले मरीज को बेड तक की सहूलत मैसर नहीं। हुकूमत पंजाब नई मेडिकल इमरजेंसी के मंसूबे को जल्द मुकम्मल कराए। बैड नहीं मिल रहा सानू, अगर किसी वर्कर को कहने तो बदतमीजी ਨਾਲ पेश आंदा कि ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ दो उन्होंने मरीज पाए ने। गुंजाइश से जायद मरीज होने के 22 डॉक्टर्स को भी इलाज मुआवजे में परेशानी का सामना है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। FBR और वफाकी हुकूमत नए टैक्स गुजार तलाश करने के बजाय शहरियों पर सेल्स टैक्स की सूरत में इनडायरेक्ट टैक्स का बोझ बढ़ाने लगी। रवा माली साल के पहले 2 माह के दौरान फैसलाबादियों से अशिया खुर्दनोश, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया पर 5500 मिलियन रुपए से ज़्यादा सेल्स टैक्स वसूल कर लिया गया। FBR और सरकार नए टैक्स गुजार तलाश करने की बजाय शहरियों पर सेल्स टैक्स का बोझ बढ़ाने लगी। 2 महीनों के दौरान फैसलाबादियों से अशिया ज़रूरिया की खरीदारी पर 5.5 अरब रुपए सेल्स टैक्स वसूल कर दिया गया। गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 4200 मिलियन रुपए सेल्स टैक्स वसूल किया गया था।
गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 2 महीने के दौरान ही शहरियों की जेबों से 1200 मिलियन रुपए ज़ायद निकलवा लिए गए। शहरी अद्वियात, घी, कुकिंग ऑयल, दूध समेत अद्वियात और दीगर अशिया पर सेल्स टैक्स अदा करने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान में तैनात मलेशिया के सफ़ीर अजहर बिन मजलान की फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत आमद सनतकारों के साथ पाक मलेशिया तिजारती ताल्लुकात, नए मुआहदे और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शिराज भट्ट की रिपोर्ट। में तैनात मलेशियन सफीर अजहर बिन मजलान का ऐवान सनत व तिजारत फैसलाबाद का दौरा। सनतकारों से पाक मलेशिया तिजारती ताल्लुकात, नए मुआहिदों और दीगर अमूर जेर बहस आए। उनका कहना था कि पाक मलेशिया ताल्लुकात 66 साल पुराना है और हम अपनी बाहमी तिजारत को $10 मिलियन तक ले जाना चाहते हैं। At the same time, halal industry also constitute Sharia finance compliance, riba-free banking system. So this is what Malaysia is propagating through the OIC. For Muslim country to go for halal compliance, Islamic Sharia compliance of financial system. अजहर बिन मजलान ने कहा कि पाकिस्तान मलेशिया को डेयरी और हलाल गोश्त बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कर सकता है। Pakistan is developing your own digital economy concept in this country. And ASEAN, where Malaysia is located, we have about 10, or rather we have 10 member states of ASEAN: Indonesia, Thailand, Singapore, Vietnam, Myanmar, Laos, Cambodia. सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक ने फैसलाबाद का तिजारती वफ्द मलेशिया भेजने और नए कारोबारी मुआहदे करने की यकीन दहानी करवाई। कैमरामैन अकील नकाश के साथ शिराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग, हजारों मछलियों की अफजाइश सिर्फ एक टैंक में। कड़ियांवाला फैसलाबाद में पंजाब फिशरीज के ताउन से तैयार करदा बायोफ्लॉक सिस्टम में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियों की प्रोडक्शन जारी है। चंद मरलों में एकड़ जितनी मछलियों की पैदावार कैसे हासिल की जाती है, जानते हैं फसी नकवी की रिपोर्ट में। जगह कम, मुनाफा ज्यादा और लागत माकूल। फिश फार्मिंग के लिए अब कई एकड़ रकबे की जरूरत नहीं, बल्कि चंद मरलों में कई एकड़ जितनी मछलियां तैयार की जा सकती हैं। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से 20 फुट डायामीटर का एक टैंक तैयार किया जाता है और मसनूई तरीके से मछलियों को ऑक्सीजन मुहैया की जाती है। फार्मर जावेद रंधावा ने बताया कि अमूमन 1 एकड़ के तालाब में 800 से 1000 मछलियों की प्रोडक्शन होती है, लेकिन बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी की वजह से हम 1 एकड़ में 42 एकड़ जितनी मछलियों की पैदावार हासिल कर रहे हैं। 1.5 लाख रुपए से एक बायोफ्लॉक सिस्टम लग जाता है। 6-7 साल से ये इस काम में कर रहे हैं, खुद भी फार्मिंग कर रहे हैं और ये इंस्टॉल भी करके देते हैं। तो इनसे मीटिंग हुई, 2-3 मीटिंग में हमने फाइनल कर लिया। तो हम 3-4 दोस्त मिले कि यार ये 2-3 टैंकों से क्या करना है, तो इसको थोड़ा सा ना बड़े पैमाने पे करते हैं। तो हम 3-4 दोस्त मिल के हमने इन्वेस्टमेंट की, तो हमने 42 टैंक जो है ना यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर दिए। फार्मर मियां इमरान कहते हैं बायोफ्लॉक सिस्टम में लेबर और पानी कम इस्तेमाल होता है। 6 माह की प्रोडक्शन सीजन में टैंकों में 2 बार पानी तब्दील किया जाता है। बायोफ्लॉक सिस्टम के लिए 24 घंटे ऑक्सीजन पंप का चलना जरूरी है। बायोफ्लॉक में 6 माह प्रोडक्शन और अगले 6 माह बच्चा मछली पैदा करके भी मुनाफा हासिल किया जा सकता है। 20 फुट डाई का टैंक है और इसकी 4 फुट हाइट है। इसमें 35,000 के करीब जो है ना पानी है। तो इसमें जो है पंगासियस डाली हुई है, हमने 800 पंगासियस के करीब डाली हुई है। अगर हम 800 पंगासियस डालते हैं, हमारी 2 kg के पास प्रोग्रेस आती है या 2.25 kg प्रोग्रेस आती है, तो हमारा 1.5 से 2 टन हम प्रोग्रेस इसमें से ले सकते हैं। डिप्टी डायरेक्टर फिशरीज फैसलाबाद डिवीजन राना मोहम्मद खालिद के मुताबिक पंजाब फिशरीज बायोफ्लॉक फार्मिंग को तरजीह दे रही है। लोगों के पास अब इतनी जमीनें नहीं रही कि एकड़ों पर फिश फार्मिंग करें। चाइना और थाईलैंड से इंपोर्ट की गई टेक्नोलॉजी है बायोफ्लॉक। उसमें ये है कि जैसे जैसे हमारी ज़मीनें कम हो रही हैं या ऐसे अफराद जिनके पास ज़्यादा ज़मीन अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने थोड़े से एरिया में ये बायोफ्लॉक का कल्चर कर सकते हैं। तो इसमें जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, इसमें ये बड़े जो फार्म हैं 1 एकड़ या 2 एकड़ की जगह उसको दरकार थी। बायोफ्लॉक फार्मिंग में एक बार की इन्वेस्टमेंट और साल का मुनाफा है। बदलते दौर और जदीद साइंसी तहकीक ने इस बात को भी साबित कर दिया है कि फिश फार्मिंग के लिए अब इतने बड़े तालाबों की ज़रूरत बाकी नहीं रही। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर जोता के साथ फसी नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। इसी के साथ जो बुलेटिन अपने ख़त्म को पहुँचता है, देखते रहिए सिटी 41।